Hello and welcome students to the channel Sumita's chemistry class of standard 9 chapter 2 is matter around us pure. Students, we already have discussed in our previous video regarding the topic heterogeneous mixture, suspension, colloidal solution, properties of their colloidal solution and suspension, types of colloidal solution, size of the particles of suspension, colloidal solution, true solution, and the examples. So today we will continue with the next topic, separating the components of a mixture. So today's this is the activity based topic, separating the components of a mixture. Different methods can be used to separate various mixture into their components depending on the particle of the components. In general, the separation of components from a mixture depends upon the types of mixture. Means the types of mixture means this mixture is homogeneous or heterogeneous. It means different components of mixture के लिए different kinds of method use किया जाता है जो कि components के properties के ऊपर depend करता है. The separation of components from a mixture का जो mixture का जब first है कि वो किसके ऊपर depend करता है, the type of mixture. The type of mixture, this one is homogeneous mixture or heterogeneous mixture. Means heterogeneous mixture, the constituent present have clear boundaries of separation. So therefore, this separation is quite easy by some physical method. Its problems or its difficulties in homogeneous mixture. These are in the form of solution. So that's why special methods have to adopted for the separation of this constituent present. Okay. Now the second point, separating of the components of mixture also depend on the nature of the substance present in the mixture. उसी मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव solubility in a particular solvent. Few more such properties are quite useful. The separating the constituent or components for a mixture or in purifying in impure sample. Okay, students. The heterogeneous mixture, the separation is quite use of some physical method. This is such as hand picking, sieving, filtration. These all the methods are used for the heterogeneous mixture. और समटाइम जो स्पेशल टेक्निक्स यूज होता है वो किसके लिए, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए. The sometimes special techniques are used to separate the constituents of a mixture which is described in the experimental. So now we will start the experiment. Okay. The first experiment, to separate the colored dye from ink. How to separate ink from the colored dye, a colored dye from the ink. Okay. Now look at this activity, slow evaporation of liquid from a watch glass. So materials required, small beaker, watch glass, wire gauge, this one is wire gauge, tripod stand, burner, water and blue or black ink.
Okay, so now the procedure. Now the procedure. Fill the beaker half with water. Put a watch glass on the beaker and place a few drops of ink on the watch glass. Okay. Third point. Now heat the beaker. Water starts changing into steam, which heats the ink. Next point, evaporation takes place from ink. क्या किए पहले हम लोग प्रोसीजर में? बीकर्स को हाफ बीकर्स पानी लिए, उसमें जो वॉच ग्लास उस बीकर के ऊपर में रख दिए, जिसमें 4-5 ड्रॉप इंक उस वॉच ग्लास में डाल दिए. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू हीट द बीकर. हम लोग उस बीकर को गरम करना स्टार्ट किए बुनसन बर्नर से. कुछ देर के बाद हम लोग देखें कि वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू स्टीम. वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगा, और उसी वेपर और स्टीम से इंक भी हीट होने लगा. और एक वक्त आया, इवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इंक. इंक में जितने भी लिक्विड अमाउंट था उसको क्या किया, इवापोरेट कर दिया. द लास्ट पॉइंट, कंटिन्यू हीटिंग until no evaporation take place from ink. मतलब ये तब तक हीट किया गया जब तक ना उस इंक से कंप्लीटली इवापोरेशन प्रोसेस इट्स टेक प्लेस, वो ख़त्म नहीं हुआ. तो नाउ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? वाटर गेट्स इवापोरेट फ्रॉम द वॉच ग्लास. ब्लू कलर्ड रेसिड्यू dye is left on the watch glass. Ink is not a pure, means single substance. It is a mixture of dye in water. Is it clear students? हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया? ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? वाटर गेट्स इवापोरेट. इंक में जितने पानी मिला हुआ था, मीन्स इंक इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इंक. तो इंक में जितना पानी मिला हुआ था वो सारा लिक्विड हीट के कारण इवापोरेट हो गया. इवापोरेट होने के कारण जो ब्लू और ब्लैक कलर का डाई इंक हम लोगों ने वॉच ग्लास में रखा था, तो वो ओनली डाई होके वो हीट से उसका सिर्फ रेसिड्यू बच गया, मीन्स वो छूट रह गया. बाकी कंप्लीटली जो वाटर था वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया. इससे क्या पता चला? पूरा कंप्लीट वाटर इवापोरेट होने के बाद उसमें से जो ब्लू ब्लैक डाई था वो रेसिड्यू के तौर पर रह गया. तो इससे हम लोग को ये पता चला कि इंक प्योर सब्सटेंस नहीं है, मीन्स ये सिंगल सब्सटेंस से बना हुआ नहीं है. दिस इज द मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, ये वाटर और डाइज का मिक्सचर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द कंक्लूजन और इन्फरेंस. वी कैन सेपरेट द नॉन वोलेटाइल components from a volatile solvent by the process of evaporation. So is separate to dyes from the ink. तो ये किस प्रोसेस से, किस मेथड से अलग होता है? दैट इज कॉल्ड द इवापोरेशन. Non-volatile components. Non-volatile means which cannot vaporize, and volatile means which
can vaporize. Clear, students? Now the second experiment aim to separate cream from milk, means how to separate cream from the milk. Materials required: full cream milk, now look at here, and test tube, and also centrifugal machine. This is the centrifugal machine. Procedure: take some full cream milk in a test tube. Centrifuge the test tube with its content for 2 minutes. क्या प्रोसीजर है? हम लोगों को क्या लेना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? फुल क्रीम मिल्क लेना है टेस्ट ट्यूब में, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको मिल्क को डाल के, फुल क्रीम मिल्क को डाल के हाई स्पीड में उसको चला देना है. ओके, सेंट्रीफ्यूग द टेस्ट ट्यूब विथ इट्स कंटेंट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट तक उसको हाई स्पीड में ऑन करना है. ओके. ऑब्जर्वेशन: cream gets separated from milk and floats on the top of it. मीन्स हम लोगों ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू फुल क्रीम ऑफ मिल्क को हाई स्पीड में ऑन कर देने से या चलाने से क्या हो गया ना, मिल्क से क्रीम कंप्लीटली सेपरेट हो गया. फ्रॉम मिल्क क्रीम गेट सेपरेटेड, कंप्लीटली सेपरेट हो गया, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो फ्लोट्स होके टॉप ऑफ इट्स सरफेस, मिल्क के सरफेस में सेपरेट हो गया या अलग हो गया. स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन का जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ये मशीन एंशिएंट टाइम में भी होता था, बट दिस वाज मैनुअल. कैसे मैनुअल? हम लोग कृष्णा जो मूवी या कृष्णा, हम लोग एनिमेटेड जो कार्टून है वो भी देखे हैं, या ऐसे भी कृष्णा का जो एपिसोड सब सारा सीरियल्स हम लोग वॉच किए हैं, जिसमें दिखाता है जो यशोदा माँ वो जो बटर निकालते थी, मक्खन जो कृष्णा हमेशा चुरा लेते थे, वो वही सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से ही निकाला जाता था. लेकिन वो प्रोसेस मैनुअली था और डिफरेंट था. क्या डिफरेंट क्या था ना, वो लकड़ी से, हाथ से उसको मट्ठा जिसे हम लोग कहते हैं वो निकालते थे. तो वो जब वो एक रूप लेके और वुड से उसको मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे, तो दिस इज जस्ट लाइक क्रीम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एंड फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ इट. वो जो छाछ रह जाता था, मट्ठा, वो नीचे जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है, और जो लाइट वेट है वो फ्लोट्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बटर, जो भगवान कृष्ण जिसको चुराया करते थे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन्फरेंस और conclusions. Colloidal solution has very fine particles of dispersed phase, which are very small and hence cannot be separated by filtration. Such particles can be separated by centrifugation. तो मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि दिस द लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट द नेचर इज हेट्रोजीनियस. मिल्क देखने से नहीं लगता है कि ये इसका जो ये हेट्रोजीनियस है,
वो देखने में होमोजीनियस है बट इसका जो बिहेवियर नेचर है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसमें जो फाइन पार्टिकल्स होता है, दिस इज द डिस्पर्स फेज, जो दिस कैनॉट बी विजिबल और कैनॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से भी वो सेपरेट नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं, दिस इज फॉर द सेपरेशन, फॉर द सेपरेटिंग द मिक्सचर, तो वो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। Now centrifugation is based, what is the centrifugation? Centrifugation is based on the principle that heavier particles settle down whereas lighter particles floats on the top when rotated at high speed. Okay. Application of centrifugation, also use or uses of centrifugation. It is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, जहाँ पर ब्लड यूरिन का टेस्ट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन dairies and at home to separate butter from milk from cream. ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ये ऑल्सो यूज़ होता है डेयरीज में, घर में, जो बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से बटर को अलग करने के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन फॉर washing dirt clothes are centrifugal machine in nature. तो ये वॉशिंग मशीन भी एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, जो क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों प्रोसेस में ही घूमता है और डर्ट क्लॉथ्स को डर्ट से अलग कर देता है। तो ये दिस इज ऑल्सो बी द सेंट्रीफ्यूगल मशीन इन नेचर, इसका जो नेचर सेंट्रीफ्यूगल मशीन की तरह है। ओके। Third experiment, to separate iron fillings and sulfur powder. Materials required: iron fillings, sulfur powder, horseshoe magnet and china dish. First of all, mixture of iron fillings and sulfur powder. Okay. Procedure: take some mixture of iron fillings and sulfur. Second point, the horseshoe magnet is repeatedly moved over the mixture. Means हमारा जो एम्स एक्सपेरिमेंट है कि हाउ टू सेपरेट, हम लोग किस तरह से आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से। तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो है, पहले तो टेक सम मिक्सचर, हम लोग तो पहले आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का एक मिक्सचर लेंगे। उसके बाद हॉर्स शो मैग्नेट्स, मीन्स मैग्नेट्स जो हॉर्स के शू की तरह देखने में होता है, इट्स उस कर्व, उसको रिपीटेडली मूव्ड ओवर द मिक्सचर। जो चाइना डिश में हम लोग ने मिक्सचर आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का जो मिक्सचर बना के रखे हैं, उसके ऊपर में रिपीटेडली क्या करेंगे, उसको मूव कराते रहेंगे। ओके। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? आयरन फिलिंग्स गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर पाउडर बाय द मैग्नेट। सो दिस हॉर्सशू मैग्नेट्स के थ्रू क्या होता है, आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सल्फर पाउडर से वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट्स उस पूरे आयरन फीलिंग्स को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट के कारण वो सारे के सारे आयरन फीलिंग्स मैग्नेट्स में जाके पेस्ट हो जाता है, स्टक हो जाता है। ओके, चिपक जाता है।
Now the inference or conclusion. Two components from a mixture, if one of them is magnetic and the other is non-magnetic in nature, then it is separated by a magnet. It's also called the magnetic separation. Okay, दो components मिक्सचर ऑफ फ्रॉम द मिक्सचर का दो कंपोनेंट जो एक मैग्नेटिक है और एक नॉन मैग्नेटिक है, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग मैग्नेट के प्रोसेस से अलग करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस. ओके, ये जो एक्टिविटी है डेमोन्स्ट्रेशन, ये आप घर में भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. यू विल टेक सम आयरन नेल्स. आप कुछ आयरन का कीला जिसको कहते हैं आयरन नेल्स, कांटी, उसको ले सकते हैं. एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ सल्फर पाउडर यू यूज सैंड और ये आयरन नेल्स को पहले आप लोग मिक्सअप कर लेंगे. मिक्सअप करने के बाद दिस मिक्सचर आप एक मैग्नेट्स को उसी के ऊपर रिपीटेडली मूव कराएंगे. तो अब देखेंगे आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वो जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेट्स के ऊपर स्टक हो गया है और या तो चिपक गया. तो चिपक जाने से वो सैंड वो बोल में डिपॉजिट रह जाएगा एंड नेल्स, आयरन नेल्स, वो अलग हो जाएगा. सो ये जो मैग्नेटिक प्रोसेस है, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस कहते हैं, वो हम लोग घर में भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट to separate a mixture of two immiscible liquids. ये जो मिक्सचर है टू immiscible liquids. Immiscible liquids means the mixture of two liquids which without mixed to each other. Okay, this is called the immiscible, like oil and water. Okay, material requires oil, maybe it's kerosene oil, chloroform, coconut oil. This is called the separating funnel, beaker, water and oil, clamp stand, and this is called the stopcock. Okay students, and this is the separation of two immiscible liquids. Procedure: pour the mixture of oil and water in a separating funnel. So first of all we will take this mixture oil and water in a separating funnel. After that, keep it undisturbed till two separate layers of oil and water are observed. उसे हम लोग undisturbed पोजीशन में छोड़ देंगे तब तक जब तक ये ऑयल एंड वाटर का बाउंड्रीज अलग ना हो जाए, लेयर्स अलग ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि वी नो दैट ऑयल इज lighter than water. Now the next, open the stopcock of the separating funnel and allow the lower layer containing water to flow through. Collect it in a beaker. जबकि we know that the density of the oil it's lighter than the water. तो इस कंडीशन में जो सेपरेटिंग फनल होता है उस सेपरेटिंग फनल में लोअर लेयर में वाटर चला जाता है एंड अपर लेयर में ऑयल रहता है. तो इस कंडीशन में जब हम लोग स्टॉप कॉक को ओपन कर देते हैं तो
वो धीरे धीरे जो लोअर लेयर में वाटर रहते हैं वो वाइप आउट होने लगता है, मीन्स निकल जाते हैं। अलाउ द लोअर लेयर कंटेनिंग वाटर टू फ्लो थ्रू, वो निकलने लगता है और उसे हम लोग एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज द स्टॉप कॉक of the separating funnel as the upper layer of the mixture reaches near the stopcock, और उसे हम लोग बहुत माइन्यूटली वॉच करते रहेंगे, जिसमें जब लास्ट में जब वो लिक्विड कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है, मीन्स सेपरेटिंग फनल से जब निकल जाता है, तो ऑयल धीरे धीरे वो स्टॉप कॉक के नियर में आ जाता है, पहुंच जाता है। जब भी वो स्टॉप कॉक के पास आ जाता है कौन, ऑयल, क्योंकि जो लिक्विड है, वाटर है, वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया, तो ऑब्वियसली लिक्विड के ऊपर में अपर लेयर में ऑयल है, तो ऑयल वो स्टॉप कॉक के पास आके जब भी मतलब पहुंच जाता है, रीचेस नियर द स्टॉप कॉक, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे, मीन्स बंद कर देंगे। So one of the liquids, that is water, is collected in the beaker while the other is left in the separating funnel, जिससे हम लोग दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कंटेनर में, मीन्स अलग अलग कंटेनर मीन्स वो वाटर को हम लोग कलेक्ट कर लिए थे पहले बीकर में, एंड जो रेस्ट ऑफ द मतलब सेकेंड कॉम्पोनेंट्स, दिस इज ऑल्सो ऑयल, जो बच गया था उस वो हम लोग सेपरेटिंग फनल में ही रख लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ऑयल एंड वाटर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिए। कौन से प्रोसेस से, कौन से apparatus से, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। ओके, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? Separating funnel is used to separate the components of a mixture of two immiscible liquids. तो यही एक प्रोसेस है सेपरेटिंग फनल, जिससे हम लोग टू इमिजिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ द एप्लीकेशंस और यूजेस। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर और एनी टू इमिजिबल लिक्विड्स। कोई भी इमिजिबल लिक्विड्स के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, और एक किस चीज़ के लिए हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं, आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के टाइम में भी हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइटर स्लैग ऑफ मोल्टेन कैल्शियम सिलिकेट लाइटर होता है एंड इट्स रिमूव्ड फ्रॉम हेवियर मोल्टेन आयरन यूजिंग दिस मेथड। तो जो हेवियर होता है वो नीचे रहता है, जो लाइटर वो ऊपर। तो सेपरेटिंग फनल में स्टॉप कॉक को ओपन करके पहले हम लोग मोल्टन आयरन को निकाल लेंगे और मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट को सेपरेटिंग फनल में ऐसे लेफ्ट ओवर देयर वहाँ पर छोड़ देंगे। Okay, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.